All right, I think yes, so we can start. Please confirm I'm audible, the screen is visible, and the meeting is being recorded. So we can continue, guys. Other guys like other people will join. So in the last session, we were discussing about the probability distributions and the probability distribution functions, and we were exploring with the help of our notebook. So let me open the notebook. I have shared this notebook with you. So I hope you you started looking into it, and you executed the code, tried to check what is there in the notebook, so that this notebook is very helpful for you to understand in terms of the distributions of the probability data, and how we can solve the problems which are asked in terms of calculation of the probabilities of specific events, the statistical events and the things. So yesterday we have discussed about discrete and the continuous probability distribution. We have also checked what is binomial distribution. So as I said, binomial means when we say binomial or binary. So, so always we refer the terminology of two. So, like a condition, if yes or no, true, false, that kind of thing. So, this binomial distribution is totally in the same way the discrete probability distribution that gives only two possible results in an experiment. And yeah, yesterday we were looking into the example of finding the probability from the visitors. Like let's say visitors are going to visit the ancient places, and there the chances we were discussing about the chances, the probabilities, whether they are buying the souvenir or not, what is the probability. So these are just the kind of questions which ask you which ask you about the probabilities, means the inferences, how you will calculate those inferences. And we know we have the tool of probability, these statistics functions and all. Using with the help of these functions and these libraries and statistical methods, we can calculate the probabilities. So that is what we have seen so far, and yesterday we were exploring the graph, how the distribution look like, and how we can solve even these problems with the help of graphical representation. So, and that graphical representation is nothing but the distribution of the probability values. So we looked this example as well. Okay, what is the probability x, this function, probability x less than equal to 7, means probability of getting, we have formulated that question also. That question is here. Let me show the question. Okay. Yeah. So this was one question. Okay, what is the probability of maximum 7 visitors out of 10 will buy the souvenirs? So this was the question which is asked over here, and we were looking into this. Okay, what is the probability that maximum of 70% out of this 10, like sample of 10 people will buy the souvenir? And for that we check the example of cumulative probability. तो उसके लिए हमने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी देखा था, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस रेड मार्क्स, दिस रेड रीजन इज शोइंग व्हाट probability of x less than equal to 7 means all the probabilities which are ranging from 1 to 7, like 7 or less than equal to 7. So this red color is showing that, and if we calculate the total of this, the total we get 0.32, which is 32%. So that was the one thing. And yeah, now this was all the recap what we were exploring yesterday. And you can see this distribution in front of you. Okay, and this is all about, see, probability of 7%, probability of 80%, like this 80%. Okay, probability of 70% distribution, probability of 80% distribution, and the probability of 90% distribution. So here you can see the distribution is different. ये distribution different है.
this is not the same, and this is all because of the probabilities values, because these probability values are changing based on the as the calculate, like based on the probability which is asked, the percentage wise. So see, conclusion. It is clear from the above plot that shape of the distribution changes as per the p-value, the probability of success changes. तो probability of success जैसे change होता है, you can see the distribution also changes. So that is the conclusion, which is very important when we will be dealing with the machine learning problems. So the distribution of the probabilities it matters in this case. And अगर आपको real life example बताऊं, तो जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में एग्जांपल दिया था, जैसे आप सबको पता है चैट जीपीटी आप सबको पता है। तो चैट जीपीटी का इंटरनल, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द बैकग्राउंड, बट एक छोटा सा इंजन का मैं बताता हूँ आपको। जो भी आप क्वेश्चंस पूछते हो चैट जीपीटी पे, व्हाट एवर द स्टेटमेंट यू यू गिव द स्टेटमेंट, ओके। तो दैट स्टेटमेंट उसकी जो टोकनाइजेशन बन के, वेक्टराइजेशन टोकनाइजेशन बन के जब मॉडल को पास होता है, ठीक है, तो मॉडल को जब ये इनपुट पास होता है, देर आर एन नंबर ऑफ लार्ज लैंग्वेज लैंग्वेज मॉडल्स के एल्गोरिदम, मतलब जो ऑलरेडी ट्रेन मॉडल है, विद दैट ट्रेन वेट्स वेट्स बोलते हैं उसको, बिकॉज दिस इज द फाइन ट्यून मॉडल, ओके। तो मॉडल फाइल, पिकल फाइल, वो सब हम देखेंगे, पिकल फाइल कैसी होती है, मॉडल की फाइल के वेट और उसकी साइज कैसे होती है, उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं, मशीन लर्निंग में वी विल लर्न दिस थिंग्स, ओके। बट द थिंग रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी विच आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर, तो जैसे कि अगर लाइक लेट्स टेक वन एग्जांपल, इट इज इवनिंग, ओके, एंड इफ आई टेल यू कि आई एम ड्रिंकिंग, ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग और मैं यहाँ पे डॉट 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 कर दूंगा, तो मे बी आपके दिमाग में फिर यू कैन कंप्लीट दिस सेंटेंस इन एनी डिफरेंट वेज ना। आई एम ड्रिंकिंग, तो मे बी यू विल से के मे बी वाटर, some of you will say maybe milk, some of you coffee or tea or something, or let's say cold drink, right? So these are all the things, but based on, let's say, whatever data I have earlier, so, and based on the context, तो context मतलब our features of our data। तो अगर डेटा में है कि भाई 8 8 बजे जनरली मेरा खाना हो जाता है और मैं जनरली कोल्ड कॉफी पीता हूँ, ठीक है, तो मे बी बेस्ड ऑन दिस, सो दिस विल बी ऑल्सो द आंसर्स। वाटर है, उसके बाद मिल्क है, टी है, कोल्ड कॉफी है, या जो भी है कोल्ड ड्रिंक्स, बट मैचिंग विद द कॉन्टेक्स्ट, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ओके। तो जैसे मैंने बोला कि कॉन्टेक्स्ट में जो रेगुलर मेरा शेड्यूल है उसमें अगर है कोल्ड कॉफी, तो कोल्ड कॉफी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो सकती है चलो 85%, या लेट से 70% कोल्ड कॉफी। मिल्क की जो बची है उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये सब होके, ठीक है, ये हो गया कॉफी, ये हो गया कोल्ड कॉफी का, मिल्क का, फिर कोल्ड ड्रिंक का, टी का, राइट। तो ये पूरा जनरेट होता है एक्चुअली इन जनरेटिव, ये चैट जीपीटी में अगर जो जनरेशन है ना चैट जीपीटी का, वो कैसे है, वर्ड टू वर्ड जनरेट होता है गाइस। जो आपको दिखता है ना ऐसे सेंटेंस जनरेट होके, प्रिंट होके जो दिखता है ना, तो ये वर्ड टू वर्ड जनरेट होता है इन द बैकग्राउंड, ओके। और जब ये जनरेट होता है ना, तो बैकग्राउंड में कैसे चलता है कि जो भी वर्ड जनरेट हुआ था बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट आज, उसके उसके बेसिस पे ये वर्ड की मैच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके साथ बाकी के भी वर्ड्स आते हैं बैकग्राउंड में, बाकी के भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, बट जिस वर्ड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मैच हुई उसको वो लाके आपके सामने दिखा देता है। Okay, so this is the generative kind of algorithm, and like the magic which you can see with the help of this chat GPT and all. So this is nothing but based on the inference, and that's why उसको बोलते हैं inferences, ठीक है। तो this is one example, there are so many examples how you get the inferences, और आपको और ये भी बताया रहता है लास्ट में कि ये दिस इज द जनरेटेड आउटपुट इन्फरेंस बाय चैट जीपीटी, प्लीज क्रॉस वेरीफाई, और लेट्स से डोंट लाइक ब्लाइंडली रिलाई ऑन इट, ऐसे एक मैसेज रहता है अगर आपने देखा हो। तो दिस आर द इन्फरेंसेस जनरेट होके आए हैं, और मॉडल को लगता है कि जो भी मैचिंग कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये वाला जो भी है वो बहुत मतलब इट इज बेटर फिट फॉर दिस। तो फिर उसके बाद ये डिपेंड होता है कि जो भी मॉडल्स यूज होते हैं ना, 3 बिलियन मॉडल होते हैं, आपने देखा होगा 4 मिनी, ये सब मॉडल के टाइप से जिसमें बहुत सारे वेट्स और पैरामीटर यूज करके वो मॉडल को ट्रेन किया होता है। बट प्रोबेबिलिटी का रोल यहाँ पे कैसे आता है, और क्या कैसे आप जनरेट होता है, कैसे डिसाइड होता है, मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया। तो based on those distribution, those things, all like regarding data, regarding the inferences, whatever the generation, all these things are
like these probability distribution functions help in that way also while generating the inferences. And it is and based on this part, so this kind of functions PMA BMA PDF ये एल्गोरिदम में कहीं कहीं पे फंक्शंस आपको दिखाई देंगे यूज किए हुए. So that is the use of it. Let's move towards the continuous uniform distribution, guys. तो continuous uniform distribution से can anyone pitch in over here के what is continuous uniform distribution? इसमें क्या हो सकता है, मतलब आपको continuous uniform distribution से क्या आइडिया आता है? ठीक है. बाय द वे दिस इज योर मार्क डाउन ना, ये एंकर टैग है, अगर आपको पीएचपी और एचटीएमएल पता है तो दिस इज जस्ट एन एंकर टैग. एंकर टैग में ये दिया है और उसको नेम करके लिंक कर दिया. सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग इन अ ब्लू कलर एंड ऑल. ऑलराइट गाइस, सो व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? सो कंटिन्यूअस, यू नो इट बेटर. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? और यू कैन गिव मी एग्जांपल आल्सो. इसका इसका कोई एग्जांपल भी दे सकता है कि आपने कहीं पे सुना है ये टर्मिनोलॉजी और कहीं पे देखा है, या इसका यूज का किस जगह पे हो सकता है. व्हाट इज एग्जैक्टली कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? आई होप आई एम ऑडिबल. Yes, yes. तो यूनिफॉर्म इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ना. यूनिफॉर्म मतलब क्या कि एक यूनिक और वी कैन से इन सेम फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा डेटा का. लेकिन एज वी आर एक्सप्लोरिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी का डेटा, राइट? तो एनीवे डेटा होने दो या प्रोबेबिलिटीज का डेटा होने दो, प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज होने दो, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मिलेगा यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म वे से मतलब हमने यहाँ पे अगर देखा तो यू कैन सी दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इन अ यूनिफॉर्म वे. तो यूनिफॉर्म से अगर आप रिलेट करोगे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल, इक्वल. यस, इक्वल रेंज ऐसा कुछ. करेक्ट करेक्ट, इक्वल रेंजेस. फॉर एग्जांपल देखो इसका यूज मैं बताता हूँ आपको. मशीनरीज जो होती है, तो मशीनरीज को जॉब दिए जाते हैं, लाइक ये 5 घंटे में इतने जॉब्स एग्जीक्यूट हो गए, राइट? तो देर इज लाइक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस होता है किसी प्रोडक्ट को जनरेट होने में. ऐसा नहीं कि बराबर अगर 30 सेकंड में कोई प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है छोटे मोटे स्केल के लेवल के प्रोडक्ट्स या वो जॉब को एग्जीक्यूट करने में, तो 30 सेकंड में दिस इज आउटपुट. तो 100 मतलब मशीनरीज में भी ये होता है कि कहीं कहीं पे मतलब उसको बग बोलते हैं या डिफरेंस बोलते हैं, फिर वो दैट इज. तो अलाउेबल एक रेंज होती है कि भाई 28 सेकंड से 30 सेकंड तक अलाउ है कि उसमें अगर जनरेट होता है इट्स ओके. बट इफ इट इज गोइंग आउट ऑफ दैट देन देर इज सम इशू इन द मशीन. इफ इट इज गोइंग लाइक लेस देन 20 सेकंड, एकदम फास्ट में हो रहा है, तो मे बी प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई द जनरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म. Okay, so those kind of example, guys, and here you can see there is one example. Okay, IT industry records. ठीक है. So let's say this is very relevant and you can relate with because you are IT people, so you can relate this example. So IT industry records the amount of time software engineer needs to fix a bug इन द इनिशियल फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है. मतलब ये एक डेटा है, ये डिबगिंग डॉट सीएसवी का एक डेटा है. वी विल, ठीक है, इसको रीड भी करेंगे हम. ओके, लेट मी डू वन थिंग. मैं सबको ही रन कर देता हूँ पूरे जितने भी, तो जल्दी से अपने को मिल जाएगा जो भी है. ठीक है, इट इज रनिंग. सो या हियर यू कैन सी बग आईडी, मतलब वॉट एवर द बग्स. मैंटिस अगर आपने देखा होगा, जीरा देखा होगा, वहां पे बहुत सारे बग्स भी रहते हैं. तो टाइम टेकन टू फिक्स द बग मतलब ऐसे एक एक सर्वे चल रहा है ऐसे समझो, या किसी मैनेजर या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि भाई जनरली बग फिक्सिंग में कितना टाइम लगता है. अभी दिस इज वेरी, गाइज आपको लगेगा कि यार बग तो अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई कोई बग 3 3 4 4 दिन भी ले लेता है. ओके, दैट इज अनदर थिंग. बट आपको अगर सिमुलेशन वगैरह वो सब मतलब चीजें पता, तो एक काइंड ऑफ लेट्स से इन सपोर्ट टिकट देयर आर सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज विच आर लाइक नॉट विच आर नॉट टेकिंग, जैसे R&D वगैरह नहीं करना, वो नॉन बग्स है. और वो नॉन बग्स का एक कैटेगरी है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है उसमें वो बग फिक्स हो जाता है. ओके. तो दिस इज द गिवन डेटा, डिबगिंग डॉट सीएसवी का गिवन डेटा है. लेट मी डू वन थिंग ओवर हियर. अगर मैं थोड़ा ज्यादा डेटा लूंगा यहाँ पे, तो यू विल बी गेटिंग मोर आइडिया हाउ द डेटा इज. सो व्हाट वी डू जनरली, ओके, लेट मी टेक 50 रिकॉर्ड्स मिलते हैं क्या, देखते. ठीक है, दीज आर द 50 रिकॉर्ड्स. ओके, बग आईडीज आर गिवन एंड ये टाइम टेकन, तो इसको आप आवर्स में, हाँ यस, यू कैन कंसिडर दिस टाइम इज इन आवर्स. 2 2.5 घंटे में हुआ, फिर 2 घंटे 3 मिनट, 2 घंटे 42 मिनट्स. ओके, दिस इज द टाइम गिवन. तो
now this data is saying ki bug ID and the time taken to fix the bug. Okay, we have this data, and what we have asked, okay, find the probability that randomly selected software debugging requires less than 3 hours. ठीक है, मतलब ये आवर्स में ही है, ठीक है, ये जो टाइम टेकन है आवर्स है, और बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर डिबगिंग रिक्वायर्स लेस देन 3 आवर्स, मतलब रैंडमली जो भी बग का आप आईडी निकाल रहे हो उसका प्रोबेबिलिटी है होना चाहिए कि भाई वो 3 घंटे के अंदर सॉल्व होना चाहिए। तो मे बी फिर आपको लगेगा कि क्यों ऐसे चाहिए ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि चलो भाई अपने पास 3 घंटे है, जल्द मैक्स टू मैक्स बग सॉल्व करने हैं, तो अपने को ऐसे निकालने हैं इसमें से कि 3 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाए, तो प्रोबेबिलिटीज उसके निकलने की प्रोबेबिलिटीज दिस आर आस्किंग दिस गाइस आर, तो उसके केस में हम वी विल बी यूजिंग द कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विच इज रेडीमेड फंक्शन, एंड इट गिव्स यू the this kind of probabilities distribution. You just have to use that function and pass the values. So see, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है, यू कैन सी, जैसे मैंने मशीनरी का भी एक एग्जांपल दिया, एंड यू कैन सी जितने भी रेंजेस हैं, ठीक है, बग फिक्सिंग के, okay, so the probabilities, their probabilities distribution and the time, so time is ranging from 1 to 5, तो 1 से 5 घंटे तक के जो भी फिक्सिंग है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर बग फिक्सिंग इज गिवन हियर, गिवन ओवर हियर, एंड देयर प्रोबेबिलिटीज इज लाइक एवरेज, ऑन एन एवरेज इट इज रेंजिंग नियर 0.25, ठीक है, मैक्सिमम। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा है, बट दैट इज नॉट मोर देन लेट्स से 3.3%, लाइक मतलब ये जो डिफरेंस है इट इज नॉट मोर देन व्हाट वी कैन से 0.03% से ऊपर नहीं है, ठीक है। ओके, तो दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ गिवन डेटा। ओके गाइस, ओके, तो फर्स्ट थिंग ये मीन मीन निकाल लिया है, मीन इन द सेंस वी नो हाउ टू कैलकुलेट द मीन, वॉट एवर द टाइम वाज गिवन इन द आवर्स, उसका पूरा अगर मीन निकालते तो यस, सेंटर में 3 घंटे के अंदर, मतलब 3 घंटे और वी कैन से 1 मिनट का हमको दिख रहा है टोटल जो बग है, टोटल टोटल जितने हैं टाइम, लेट से कि टोटल कितने हैं, तो टोटल में शेप्सी 2098, मतलब या 2100 रिकॉर्ड्स है टोटल, ठीक है, एंड आउट ऑफ दोज रिकॉर्ड्स वी नो हाउ टू फाइंड द मीन, डिबगिंग का मीन निकाला तो लगभग 3 घंटे लगते हैं, ओके, 3 घंटे, मतलब ऑन एन एवरेज, दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी 3 इज इन द सेंटर एज अ मीन, ओके। इफ यू रिमेंबर दिस केडी इज ट्रू, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन जो कल हमने बात की थी, केडी की कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, सो इन दिस ग्राफ यू कैन सी हाउ द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन ओवर हियर। आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, बिकॉज द डेंसिटी ओवर हियर इज हायर, ओके, एज कंपेयर टू द डेंसिटी ओवर हियर, ये इस यहाँ पे थोड़ा नीचे गया है, देखो ये नीचे गया ऐसा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सम डेंसिटी यहाँ पे गई, लेकिन यहाँ पे कम था तो ये नीचे है, यहाँ पे ज्यादा है डेंसिटी, ओके, एंड द क्यूमुलेटिव डेंसिटी ओवर हियर इज मोर बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। सो ये जो केडी का दिखाता है ना हमको, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, इट टेल्स अस वेयर इज द डेंसिटी, लाइक द डेंस्ड पार्ट कौन सा है इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो yeah, let's see and let's solve these questions which are asked, and you will see कि what we are doing, we are using the uniform जो है यूनिफॉर्म, दिस sci-fi.stats का जो फंक्शन है यूनिफॉर्म, वी आर पासिंग द स्केल एंड लोकेशन टू गेट द प्रोबेबिलिटीज, ओके। तो लोकेशन क्या है, स्केल क्या है, उसके बाद एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू बोले तो वी कैन से दिस इज द पॉइंट विच वी वांट फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके, मीन्स कहां से हमको, जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 7, ओके, इन दिस केस एक्स विल बी 3, एक्स विल बी 3 बिकॉज ऑन एन एवरेज वी हैव सीन कि 3 तक है, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, question is asked to us is find the probability randomly selected is less than 3 hours, right, less than 3 hours, तो x की वैल्यू वी नो, ठीक है, इन दिस फंक्शन, जो भी हम जो पीएमएफ का जो फंक्शन देख रहे हैं इसका, सॉरी, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का यू दिस फंक्शन वेयर इट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ का जो फंक्शन देख रहे हैं, एक्स इज 3 बिकॉज इन द गिवन एग्जांपल वी नो दैट, ओके, द स्केल इज 4,
ठीक है, बिकॉज इट इज द विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, दैट मीन्स द मैक्सिमम इज वी कैन से के लोकेशन जो है अपना एक से लेके चार तक. तो दिस इसमें क्या होता है, 1+4 = 5, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी एक से लेके पांच तक जो अपने जो मतलब रेंज आपको पता है, वी हैव सीन द रेंज. हाँ, एंड पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर द डेटा विच इज गिवन, आवर डेटा इज गिवन फ्रॉम एक से लेके 5 घंटे तक. सो रेंज इज मिनिमम टू मैक्सिमम, एंड वी नो द रेंज इज 1 to 5, right? So these are the values which we put. Okay, and once we put now, then we start getting the answers. So and you can just then start calculating the answers from the given function. Okay, तो क्या क्या था देखो, यहाँ पे हाईलाइट भी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर डिबगिंग रिक्वायर्स अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 3 आवर्स. ठीक है, तो 3 आवर्स का मैक्सिमम टाइम है, तो पुट द वैल्यूज. वैल्यूज क्या क्या है, अपना 3 दिया था, लेस देन इक्वल टू एक्स, तो एक्स रेंजेस फ्रॉम लेस देन इक्वल टू 3 तक, राइट? एंड हियर इन दिस यू विल बी गेटिंग कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी वो है 0.5, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग द of randomly selected software debugging requires maximum time of 3 hours. उसकी probability है 0.5. Okay, then this is the second example. Find the probability that randomly selected software bug fixing requires more than 2 hours. कुछ नहीं, x की वैल्यू डालनी है आपको, x is greater than equal to 2 hours. So 2 probability of x greater than 2, put it over here and you will get the probability of x greater than 2. तो दो दो वी हैव नॉट इंक्लूडेड 2. दिस रेड रीजन इज शोइंग कि भाई 2 से लेके 5 तक का जितना भी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आपको मिलता है, दैट इज नथिंग बट यूर 75%, वन माइनस जो हमारा आया था यूनिफॉर्म का. ठीक है, कंसिडरिंग एक्स इक्वल टू 2. सो दीज आर द वैल्यूज गाइस, एंड ये 1 से माइनस क्यों किया, बिकॉज यू नो दिस थिंग्स, बिकॉज व्हाट आई सेड कि 0 से लेके 1 तक इसका जो भी क्यूमुलेटिव जो एडिशन है वो हमेशा रहता है 1 प्रोबेबिलिटी का. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज की है उन सबका क्यूमुलेटिव आएगा 1, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1. ठीक है, तो दैट्स वाई अगर किसी की ए की प्रोबेबिलिटी हमको दी है, ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी दी है, सपोज एक्स वाई जेड है, और बी की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, एंड इन दिस इवेंट ना ओनली ए एंड बी, ये दो ही प्रोबेबिलिटी रेंज कर रही है इसमें, तो ऑब्वियसली इसका टोटल है अपना एक. ए की प्रोबेबिलिटी अगर दी है तो ए की प्रोबेबिलिटी अगर यहां से माइनस करेंगे तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी माइनस की तो आपको बी मिलेगा, बी का वैल्यू, राइट? So the same thing which has it is done here, and the probability of getting the randomly selected software bug fixes requires more than 2 hours is 75%. ठीक है, ओके, परसेंटाइल. गाइस परसेंटाइल, यू नो व्हाट इज परसेंटाइल एंड व्हाट इज द परसेंटेज. आपको पता है परसेंटेज और परसेंटाइल का डिफरेंस? यस गाइस, परसेंटाइल और परसेंटेज क्या डिफरेंस है आपको पता है? बिकॉज यू नो के अभी क्या होता है ना, सीईटी जो भी बंदे 12 क्लास के बंदे परसेंट जो भी मार्क्स देते सीईटी में, तो बोलता है मेरे को यार 40 परसेंटाइल मिले. हाँ, परसेंटाइल, हाँ परसेंटाइल, परसेंटाइल मिले. ठीक है, और कोई बोलता है मेरे को 60 परसेंटाइल मिले. तो परसेंटाइल और परसेंटेज गाइस, डू यू नो द डिफरेंस? यस, किसी को पता है इसका, परसेंटाइल और परसेंटेज का? यस गाइस, परसेंटेज और परसेंटाइल, यू कैन टेल मी ना. ठीक है, परसेंटेज का बता दो, परसेंटाइल मैं बता दूंगा. परसेंटेज तो बता सकते हो ना? यस, 60% मिले मतलब क्या, कितने आउट Percent ऑफ कितने? percentage is like out of 100, and percentile is like between the ranging. ओके ओके, रेंजिंग, ओके. ठीक है, तो इफ आई से के 20 परसेंटाइल मिले, तो फिर कैसे हम, मतलब क्या इससे क्या, व्हाट वी कैन से 20 परसेंटाइल मिले मतलब? 100 out of 20. यही तो, दैट इज नॉट करेक्ट. परसेंटेज, यस, परसेंटेज 20 मिले. Percentage. यस, परसेंटेज 20 मिले तो यू कैन, दिस इज यू कैन क्लियरली से कि 100, लाइक, या 20 out of 100, दिस इज करेक्ट फॉर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दिस इज करेक्ट. बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल ना, दैट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. और जैसे मतलब जो भी बंदे जो अपियर होते हैं सीईटी को ना, अभी मतलब ये चलता है परसेंटाइल परसेंटाइल. ऑल राइट, लेट मी एक्सप्लेन देन.
परसेंटाइल का अगर बोलेंगे तो यस, रेंज, जैसे गौरव ने बोला कि रेंज का, बट रेंज इन द इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि अगर लेट्स कंसिडर कि 10 बंदों ने ना एग्जाम दी है, ठीक है, 10 बंदे, हाँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 10 बंदे हैं, उन्होंने एग्जाम दी है। तो एग्जाम में लेट्स से पहले जो टॉपर बंदा है उसको मिले 98, ठीक है, दूसरे को मतलब 98 आउट ऑफ 100 ना, तो ये 98% उसके हो गए टॉपर बंदे की। दूसरा जो बंदा है उसको मिले 95, तीसरा बंदा है उसको मिले 91, चौथा बंदा है उसको 84 मिले, ठीक है, ऐसे करते 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 चलो 4 तो हो गए, पांचवा है उसको मिले 83, चलो पांचवा, फिर उसके बाद छठवा है उसको मिले 81, ठीक है, 81 है, फिर 70 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, उसके बाद 9 और 10, ठीक है 10, ठीक है गाइस, ये है 10 बंदों के मार्क्स। तो टॉपर को मिले 98%, ठीक है, परसेंटेज से तो कोई हमने को कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब 95% मिले, 84% मिले, सो देर इज नो प्रॉब्लम इन द परसेंटेज। बट परसेंटाइल क्या होता है देखो, तो परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कितने परसेंटाइल मिले इसको, तो व्हाट वी डू, इसका जो रैंकिंग है ना, ये कितना है उसका, मतलब इसके नीचे कितने बंदे हैं अभी, ये इसको छोड़ के 9 बंदे हैं, तो वो 9 बंदों का काउंट, 9 बंदों का काउंट, ठीक है, आउट ऑफ कितने बंदे थे, टोटल 10 बंदे थे, ठीक है, टोटल कितने थे, 10 बंदे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया आपका परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल ऐसे कैलकुलेट होता है, वही रेंजिंग। तो अगर इसका अगर बोले कि भाई इसको 83% तो मिले लेकिन इसके परसेंटाइल कितने, तो इसके परसेंटाइल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके नीचे कितने बंदे हैं आउट ऑफ जो भी, तो इसके नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके नीचे कितने बंदे हैं, 5, तो यहां पे आप लिखोगे 5, आउट ऑफ कितने, टोटल कितने बंदे हैं, 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, इसका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका परसेंटाइल, समझ रहे हो आप, वो हो जाएगा आपका परसेंटाइल, ठीक है। तो मतलब इसको, नो मैटर इसको 60% भी मिले ना, इसको 60% भी मिले ना, लेकिन परसेंटाइल इसको कितने मिले बताए, इसको सिर्फ 20% मिले, आप समझ रहे हो बात को, ठीक है, ये 10 का मैंने दिया, आप 1 लाख 2 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ उसको आप मतलब उस वे से आप कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन परसेंटाइल, इस बंदे के परसेंटाइल कितने हैं, फिर ये जिसको 60 मार्क्स मिले ना, 60%, उसके परसेंटाइल है 20, कैसे, तो उसके नीचे कितने बंदे हैं, 2, ठीक है, टोटल कितने बंदे हैं, 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, आप कर दो, ठीक है। तो दिस इज द कैलकुलेशन गाइस, दिस इज द कैलकुलेशन एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटाइल। तो ये भी होता है, हाँ, और ये फिर ये क्यों आया परसेंटाइल पिक्चर में, क्यों निकालते हैं वो सब, फिर उसके लिए अगर बोलूंगा तो ये क्या कैसे होता था कि भाई कोई बोलता था मुझे है ना 96% मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन 96% मिलने वाला तो अकेला नहीं है, अभी क्या हो गया, हर घर में होशियार बंदे हैं, किसी को मिलते हैं 95, फिर बहुत सारे लोगों को 95 95 95, फिर उसके बाद मिलते हैं 96, बहुत सारे बंदो, मतलब ऐसे, फिर यार इसमें भी ये भी टॉपर, ये भी टॉपर, टॉपर टॉपर भी कैसे, तो उस केस में कैसे, अच्छा दिस इज योर रैंक ना, तो रैंक, ओके, रैंक 1 2 3 4, फिर इसके नीचे कितने हैं उसको देखो और उसके परसेंटाइल निकालो, तो भाई अगर 10 में से जो 10 नंबर का बंदा है उसके अगर 90 है मार्क्स, 90% है, ठीक है, लेकिन परसेंटाइल अगर देखा जाए तो इसका परसेंट अगर 10 है तो, हाँ, अगर 10 बंदे हैं तो, और लास्ट वाला जो बंदा है उसका परसेंटाइल कैसे मतलब इतना कम आएगा इनके कंपैरिजन में, इस 10 बंदों के कंपैरिजन में, वो तो लास्ट वाला ही है, तो उसके परसेंटाइल आप समझ जाइए, उसके नीचे कोई नहीं है, तो कोई नहीं मतलब ये ऐसा ये 0 डिवाइड बाय वो सब वैसा कैलकुलेशन मत कीजिए आप, उसका परसेंटाइल अगर देखा जाए तो दिस इज द लास्ट वन, लाइक लास्ट नंबर, ओके, लास्ट नंबर में, या लाइक यू कैन से 0%, तो दिस इज नॉट लाइक, आपको ये फिर ये बात 0% कैसे क्या वो चीज हजम नहीं होगी, बट वेन दिस काइंड ऑफ पिक्चर्स इन रियलिटी कम्स कम जब आता है ना, तो उस टाइम पे ऐसे परसेंटाइल कैलकुलेट होते हैं, ठीक है, तो द इवन परसेंटेज 60 है बट परसेंटाइल उस बंदे के 20% है, ठीक है, दैट इज द थिंग गाइस, एंड दिस इज हाउ द परसेंटाइल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज और परसेंटाइल, तो ये होता है, ठीक है, ऑलराइट। Let's calculate the 50th percentile of software debugging time. PPF, okay. This is
this is also a function. We can say percentile point function. We can say percentage point function. Okay, it is used to calculate the percentile point given probability. It works opposite to cumulative distribution function. Okay, and when it is calculated, the answer is 3. The answer is 3. So let's calculate the 50th percentile of software. And what it is asked na, okay, what is the 50th percentile of software debugging time? So it is nothing but the 3. हाँ, ठीक है, तो उसका परसेंटाइल 3 था. तो कंक्लूजन में whatever the question, whatever the problem was given, based on, like, with the help of these statistics functions of the distribution, the probability distribution functions, we have found the answers of this. So the conclusion, there is 50% chance that the randomly selected software Gorak, yes. Gorak, how we identify, like, for this PPF function, what's the value of Q, LOC and scale? Scale, okay. Yes, so LOC is location actually. Okay, scale is the range. जैसे कि हमने बोला कि in this point we are having the data which is ranging from 1 to 5. 1 to 5, yeah. Okay, 1 to 5. So the parameters you will be passing, the minimum will be your the minimum value from the data which is ranging. तो आपको इस टाइप में जो भी रेंजेस मिलेंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी फंक्शंस जो कैलकुलेट होते हैं उसमें आपको डेटा का इस फॉर्मेट में रेंज मिलता है. तो हमको जो डेटा मिला था दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 1 आवर टू 5 आवर्स. तो उसके टाइमिंग रेंज में, आवर्स के रेंज में दिस डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड. So in the location, so if you ask me the location, so location is the minimum value. Okay, location is the minimum value. We can say the start of the distribution. And in this case, the start of the distribution, agar isko, like, if you can find the mean value, or let me do one thing, हम इसको describe भी कर सकते हैं यहाँ पे. describe function. So what is the mean? Okay, mean is which is nothing but 1. Okay, you can consider it 1. Okay, 1, and max is 5. So in our for this distribution, the location is the minimum point, and we can Okay. say the start. So start we have 1. Okay, and no matter आप इसमें 1.05 भी पास करोगे ना, तो it will not, like, ये actually this is totally depend on this. ये पैरामीटर इंटीजर में लेता है, आर्ग्यूमेंट जो भी है इंटीजर है या फ्लोट है. सो यू कैन ट्राई, लेट्स से अगर मैं ट्राई करता हूं, अगर ये आ गया तो जस्ट कंसिडर के इसका जो राउंड फिगर जो मिनिमम स्टार्ट है दैट इज 1. इट इज नॉट टेकिंग द फ्लोट वैल्यू. Okay, it is taking. So you can even pass 1, but like 1.05, which is our minimum in the range, and you can see the calculation and the value. Okay, that is location. The second part is the scale. Okay, the scale क्या है? The scale, we can say the width. Okay, width of the distribution. तो width of the distribution मतलब क्या? Width कैसे calculate करते हैं हम? Like minimum और maximum. So maximum minus minimum, जो भी आपका आंसर आएगा that will be your scale, and scale is 5. This 5 minus 1 is 4. So 4. this is our scale. Okay, so that is the thing, and these parameters, based on the given data, like given information, you will easily be able to find the location, the scale of the data, and then this x is nothing but the जो भी आपको क्वेश्चन में जो पूछा है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, उसका आपका ये वैल्यू आप डाल सकते हो. जैसे कि यहाँ पे पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस परसेंट, जो प्रोबेबिलिटी जो बोली थी कि क्या था उसका क्वेश्चन, ये 3 आवर्स, मैक्सिमम टाइम ऑफ 3 आवर्स, मतलब 3 के बियॉन्ड नहीं जाना है. तो मैक्सिमम 3 मतलब लेस देन इक्वल टू 3, एंड दैट्स व्हाई एक्स वैल्यू इज 3 ओवर हियर. एंड वंस यू पुट दिस, एक्चुअली इसके लिए स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे, मतलब बड़े जैसे नहीं क्या, हम बोलते हैं कि यार किसी फॉर्मूला को प्रूव करना है, तो वो बहुत सारे मेथड्स है स्टैटिस्टिक्स में ना. तो जैसे कि उसको प्रूव करते हैं, जैसे हमने देखा है पाइथागोरस का एक प्रूव होता है, तो प्रूफ के लिए वो कैलकुलेशन वगैरह, फिर बाद में जाके एक फॉर्मूला बनता है. वैसे इसके, this is our formulas, and we are using these formulas directly. So with the help of our statistics library, you just put the values over here, and you will just get the final answer. So and our scope is only this, because we are not there to prove this formula. We can just use this formula, and anyway this formula is directly implemented and integrated in the algorithms. But yeah, in the basic way say, so you can understand how these are calculated. So location, scale,
based on the given like data. Then normal, okay, so what is conclusion? So conclusion is 50% chance are randomly selected, ये हमने देखा. Then there is a 75% chance that randomly selected software debugging requires more than 2 hours. ये कैसे आया? ये भी हमने जो वैल्यूज है वो पुट की और उसके बाद ये हमको कैलकुलेशन मिला. एंड 50% का भी हमने जस्ट वो ये उस पे पीपीएफ का फंक्शन डाला और उसमें ये दिस इज नथिंग बट योर परसेंटाइल वैल्यू 0.5 विच वी हैव पुट एंड वी गॉट द आंसर. सो जनरली ये फॉर अंडरस्टैंडिंग था. आपको ऐसे मतलब जैसे हार्ड कोडेड ऐसा फंक्शन भी नहीं लिखने की जरूरत है आपको. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जब आप अगर किसी कोडिंग में कहीं पे ऐसा कुछ देखा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई बैकग्राउंड में क्या हुआ था और कैसे किस वे से ये फंक्शन में ये पैरामीटर्स दिए हुए. सो दैट वाज द पर्पस एंड दैट वाज द एफर्ट. So yeah, normal distribution. Let's discuss about the normal distribution, guys. We have already discussed so many times what is normal distribution. So I will not ask you what is normal distribution. I'm considering कि you know what is normal distribution. All right. Like उस किस प्रॉब्लम कैसे आते हैं और उस प्रॉब्लम्स में मतलब किस टाइप के प्रॉब्लम्स वी कैन थिंक in terms of this normal distribution. So this is one example, guys. The testing agency wants to analyze the complexity of SAT exam. ठीक है, SAT long form anything, हाँ. Okay. So कुछ एग्जाम थी तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करनी थी. ओके, दे हैव कलेक्टेड द एसएटी स्कोर्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, जो सीएसवी है हमारे पास. लेट्स आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट विल हेल्प टू डिसाइड द कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो मतलब ये अगर इसके आंसर अगर हमको मिलते हैं तो देन हमको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता चल जाएगी. ऐसा एक अंदाजा है, एक वी कैन से पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज है. ठीक है, तो ये काइंड ऑफ रहता है. बट दिस इज नॉट इन एज आई सेड इन योर केस. जब भी मशीन लर्निंग मॉडल जब डेवलप हुए थे, जब इंटीग्रेट और वी कैन से मॉडिफाई हुए थे, तो उस टाइप में ये सब उस पर्टिकुलर मॉडल को या उस जो भी डेटा में जो फाइन ट्यूनिंग, जो मॉडल की ऑलरेडी रेडीमेड मॉडल अवेलेबल है जो हम एक्सप्लोर करने वाले, तो उस मॉडल को डेवलप करते टाइम ये सब चीजें सोची गई थी कि कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये कर सकते हैं, वैसे आउटपुट बराबर आ सकता है. तो ऐसे काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर like implemented, and that's why we are seeing the inferences. So similar kind of examples which we are seeing, just these are examples, but in a reality how those models got trained, so that was another thing, and the algorithms are ready. Okay, but yeah, statistics we are exploring. So calculate the probability that student will score less than 800 marks in ACT exam. ये सब probabilities है और calculate है. Probabilities guys, probabilities very important. मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि 100% यही करेक्ट है, बट प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, पॉसिबिलिटीज. मतलब क्या कि एक इन्फरेंस है, एक अनुमान है, अंदाज है कि हाँ इतना हो सकता है, इतने चांसेस है, तो चांसेस वी आर कैलकुलेटिंग ऑलवेज. ठीक है, ओके. तो ये क्वेश्चंस थे कुछ दिए हुए एंड दिस इज आवर डेटा गाइस. ये डेटा है अपने पास एंड आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस फाइल एंड द डेटा फाइल आल्सो विद यू. तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, देखिए कैसा है, क्या है, एंड जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पस, understanding in terms of the statistics now. Calculating the mean and standard deviation. So we know what is mean, what is standard deviation. We know the formulas also, so easily we can calculate. And these are the standard deviation and mean. Okay, that is already done. Plotting the distribution. See, normal distribution है, अपना जो data दिया है ना वो normal. तो normally distributed data, guys, you can see कैसे उसका डेंसिटी केडी अगर डाला यहाँ पे, तो यहाँ पे यू कैन सी डेंसिटी कहाँ पे है, किस रेंज में ज्यादा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, कैसे दिखता है देखो प्लॉटिंग में. तो दिस काइंड ऑफ डेटा इज वेरी हेल्पफुल फॉर मशीन लर्निंग, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. तो दैट इज वेरी गुड थिंग. ओके, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल स्कोर लेस देन 800 इन एसएटी एग्जाम. तो what we have done, see normal, because we know that this data which we are given is a normally distributed data. So directly we use the normal function which is extracted, which is imported from the SciPy statistics की library जो है like SciPy, उससे हमने normal जो है वो import किया है function statistics का, because we are dealing with the normal distribution. And you just put the value, क्या पूछा था हमको, 800, right, less than 800. Put it over here, okay, and pass this mu and sigma. Sigma is nothing but our standard deviation जो हमने calculate किया यहाँ पे ऊपर. ठीक है ना, okay, these values. और mu is nothing but population का mean, जो mu जो हम बोलते हैं जनरली, और उससे जो probability आपको मिल जाएगी, that is your probability of this question. Calculate the probability that student will score less than 800, and this is the probability. Just pass it
and you will get the answer. Okay, so this is ready-made functions, and because of these functions in algorithm बहुत काम easy हो जाता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टैटिस्टिक्स के जो फंक्शन यूज करो, वैल्यू पास करो, लाइक ये जो रहेगी वो डायनामिक वैल्यू रहेगी, एल्गोरिदम के जो लूप चलेंगे, जो भी एग्जीक्यूशन होगा उसमें, एंड दिस आर द like the probability values which are generated. So very fraction of second में ये सब हो जाता है, कैलकुलेशन मिल जाता है, प्रोबेबिलिटीज मिल जाती है। तो दिस शेडेड रेड रीजन यू कैन सी, तो क्या है दिस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज, देखो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव सीडीएफ फंक्शन है। क्यूमुलेटिव मतलब क्या, सिर्फ इसका नहीं कैलकुलेट किया, पूरा क्यूमुलेटिव देखा और उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आई थी हमारी 15%, ये वाली 15%, राइट। सो दिस ये जो हाईलाइटेड रेड रीजन है गाइस, this is telling you the probability of getting the marks like 800, ठीक है, 800 or less than 800, up to 800. So this is the graphical representation of that. Calculate the probability that the student will score more than 1300. तो सिमिलर वे से आप वही डालिए, बट द थिंग इज जैसे वही वाला क्या कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक, राइट। तो 1 माइनस ये जो भी है वो आप डालिए यहाँ पे, बिकॉज स्टूडेंट विल स्कोर मोर देन पूछा है ना, मोर देन, बराबर, मोर देन पूछा है, राइट। मतलब इस साइड का रीजन, किस साइड का, जो 1300 है ना, 1300 यहाँ पे 1300 आएगा कहीं पे, देखो यहाँ पे दिस साइड यहाँ पे 1300 आएगा, तो ये रीजन पूछ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज हियर। ओके, एंड यू गेट द आंसर विच इज नथिंग बट 0.077% चांसेस, ठीक है। और डोंट वरी, डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मतलब इससे ज्यादा और सिंप्लीफाइड वे नहीं हो सकता जो विच आई एम टेलिंग है। तो उसको अगर मतलब यहाँ पे बहुत सारे मतलब एक्सपर्ट बंदे भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आई नो इट, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट मोर एंड मोर सिंपल। ये जो कलर दिखाया है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का जो रिलेशन लग रहा है, एकदम सिंपल वे से मैंने ट्राई किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। इट्स ओके, आपको इसका 10% भी अंडरस्टैंडिंग, इट्स ओके, डोंट वरी मोर ऑन दिस, बिकॉज आई नो द थिंग्स कैसे है क्या है, बट एज आई सेड कि दिस इज प्रोसेस, यू हैव टू गो, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। डोंट वरी, अभी नहीं, लेकिन आपको है ना 1-2 साल में ये सब चीजें ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगी जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एंड या यू विल गेट दिस, डोंट वरी ऑन। बट दिस आर द थिंग्स गाइस, दिस आर द कैलकुलेशंस। तो ऐसे क्वेश्चंस है और उसको पूछा है, और जस्ट वी आर यूजिंग दिस पीपीएफ फंक्शन, बिकॉज वाई पीपीएफ, as I said na, percent point function, so here it is asking about the percent and we are using the ppf, nothing else, and as used to हो जाएगा। आप इसको बार बार रिवीजन करो, you will get more like most of the things like understanding from these things. This file is already shared with you, so please have a look if you want to explore more in terms of this statistics. Otherwise हमारा नेक्स्ट सेशन जो शुरू हो जाएगा, तो वहां से प्रॉपर गाइस हमारा एक्चुअल जो जर्नी है वो शुरू होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में क्या होगा, जो भी हमने अभी तक पाइथन और स्टैटिस्टिक्स के जो इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजी देखी ना, उसका उस वहां पे भी थोड़ा थोड़ा यूज होगा, तो बट उस टाइम पे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट इफ यू हैव मिस समथिंग इन दिस 2 मॉड्यूल्स, सो लाइक यू विल गेट द आइडिया कि कहाँ कहाँ पे ईडीए में यूज हुआ था, ठीक है। बट ईडीए से गाइज यू आर लाइक मूविंग क्लोजर, लाइक 1 स्टेप आप क्लोज जा रहे हो मशीन लर्निंग और एआई के, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहोगे इस सब चीजों में। ओके, नाउ what is z score, let's standardize the standardization of normal variables, ठीक है। तो z score is very important terminologies guys, और ये कब आपको मिले, मतलब आपको कब यूज होगा। सो रियलिटी में डेटा जो है वो आपको हमेशा नॉर्मलाइज डेटा नहीं मिलेगा, ओके। जैसे मैंने स्क्यू डेटा बोला है आपको, लेफ्ट स्क्यू, राइट स्क्यू, अनबैलेंस डेटा, ठीक है। तो आपको हमेशा नॉर्मलाइज डेटा नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा ये यहाँ पे जैसा है ना, हमेशा इस वे से डेटा नहीं मिलेगा। और इस वे से जब डेटा मिलता है तो यू कैन सी कितना इजी है कैलकुलेट करना, जब इस वे से डेटा मिलता है। बट नॉर्मली आपको ऐसा डेटा नहीं मिलेगा, मतलब चांसेस है 2-3% चांसेस के आपको जो डेटा मिला वो नॉर्मलाइज डेटा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ना जो भी डेटा है विच इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रियलिटी, हाँ। तो यू कैन मेक दैट डेटा नॉर्मल। आप ये जेड स्कोर का यूज करके, ये फंक्शन को अप्लाई करके, ये कैलकुलेशन को अप्लाई करके, जैसे मैंने इफ यू नो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर
जो भी है मतलब इम्बैलेंस डेटा या डेटा का अगर हम हर एक सैम्पलिंग का मीन निकाल के उसका अगर प्लॉटिंग करेंगे तो यू विल गेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ यू रिमेंबर द CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड स्कोर जो है वो यूज होता है एंड इट मेक्स योर डेटा नॉर्मलाइज। तो व्हाट इज जेड स्कोर? ओके, व्हाट इज जेड स्कोर? जेड स्कोर टेल्स यू हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन द डेटा पॉइंट्स इज फ्रॉम द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या कि देखो, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मीन से कितना है, कितना स्प्रेड हुआ है, उसकी आइडिया देता है हमको जेड स्कोर। मतलब क्या, मीन से कोई तो रेंज होनी होगी ना जिसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कोई तो रेंज होगी, कोई तो रेंज होगी जिसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर ये रेंज है वन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका डेटा इस रेंज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और लेट से क्या, अगर आपको कोई बोलेगा वी आर टेकिंग द डेटा स्प्रेड अप टू वन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब क्या, एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्प्रेड हुआ डेटा आपको लेना है। if someone is telling you कि let's consider the data spread into two standard deviation, मतलब क्या, मीन से एक और दो, तो दो स्टैंडर्ड डेविएशन तक का स्प्रेड हुआ डेटा यू हैव टू टेक। तो एक जनरल रूल है, हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक एक्सप्लोर करते हैं डेटा को। मतलब जो भी स्प्रेड है, स्प्रेड ऑफ अ डेटा, वी गो अप टू 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मैक्स टू मैक्स, उसके ज्यादा फिर ऊपर नहीं जाते, आउटलायर्स मिलते हैं फिर, बट जनरली वी गो इन दिस रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो सी एग्जांपल, लेस देन इक्वल टू -3, मतलब निगेटिव वे से यहाँ से -3 आएगा और पॉजिटिवली यहाँ पे 3 आएगा। तो इसी रेंज में रहता है आपका, देखो, हाई जेड स्कोर, ठीक है। एंड आर ऑफन आउटलायर्स, अगर उसके बाहर गए तो वो होते हैं आउटलायर्स, ठीक है। उसके बाद तो स्टैंडर्डाइजेशन इज अलाउ, इट अलाउज टू कंपेयर द वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग जेड स्कोर आर यूज्ड इन जेड टेस्ट। ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेशंस। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल गाइज मतलब क्या, अगर कोई नया डेटा पॉइंट आता है, तो अगर नया डेटा पॉइंट यहां पे है या इस यहां पे है, ठीक है, तो ये हमको कौन बताता है, ये हमको कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बताता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेशन बताता है। मतलब क्या, अगर डेटा पॉइंट यहाँ पे, तो वी से कि डेटा इज, न्यू डेटा पॉइंट इज लाइंग इन बिटवीन अप टू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है। अगर वो बाहर है तो दैट डेटा इज आउटलायर, तो इजीली आप आउटलायर को पकड़ लेते हो बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन ऑफ जेड स्कोर, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट है, उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ईडीए में हम देखेंगे। आउटलायर्स के बारे में आई होप यू रिमेंबर ना, मैंने आउटलायर के एग्जांपल्स लिए थे, आपको दिए थे। मतलब किसी एक क्लास में एक बंदा है जिसकी हाइट 8 फीट है और बाकी सब बंदे उनकी नॉर्मल जो हाइट है 5 से लेके 5.5 फीट के बच्चे हैं, लेकिन ये एक ही बच्चा है जिसके 8 फीट है। तो ये बंदा इनमें बैठता ही नहीं कहीं पे ना, तो ही इज आउटलायर इन टर्म्स ऑफ दिस सिनेरियो। तो ऐसे आउटलायर्स जो बैठते ही नहीं एक रेंज में, नॉर्मल रेंज में, तो दोज आर आउटलायर्स। तो उसके बारे में और ईडीए में और डीप में हम देखेंगे आउटलायर्स कैसे दिखते, कैसे कैलकुलेट करते, कैसे फाइंड आउट करते और कैसे रिमूव करते। तो ये जेड स्कोर इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डीलिंग विद द डेटा इन अ मोर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वे, ठीक है, इन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो जेड स्कोर गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज द जेड स्कोर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ठीक है। एंड फॉर मोर एक्सप्लोरेशन प्लीज फील फ्री टू रेफर दिस नोटबुक। दिस मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको एकदम प्रॉपर वे से बता रहा है कि कैसे जेड स्कोर, मीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन 3, अबो, बिलो, राइट। ओके, तो ये जनरली आपको यूज होगा स्केलर में, स्टैंडर्ड स्केलर मेथड जो हम यूज करेंगे आगे डेटा को प्री प्रोसेस करने में, डेटा को नॉर्मलाइज करने में, ठीक है। तो दिस थिंग्स विल बी यूज्ड, सो just have a look, otherwise we will be discussing again and practically even when we will be dealing with the data guys, ठीक है। तो z स्कोर है यहाँ पे, देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो रेंज है, तो आपको ऐसे भी इस रेंज में देखो, एसएटी का एग्जांपल ऊपर वाला, हाँ, इन द प्लॉट द ग्रीन represents that the standardized highest ACT score of the applicants 1.75 standard deviation above the mean of the black line, ठीक है। तो ऐसे अगर रीजन आपको दिए है और पूछा है कि भाई इस से देखो विच इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबोव द मीन, ठीक है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबोव द मीन, ये ऐसे अगर पूछा है तो यू कैन इवन यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस चंक्स, उसकी प्रोबेबिलिटीज आई नो, बट या दिस काइंड ऑफ distribution guys, you can refer and just have it, go through it for your like let's say whatever you are understanding, okay, but just make sure कि आप यहाँ इससे go through करोगे, इसमें difficult ऐसा कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप इसको 2 या 3 बार रिपीट करके देख लोगे ना, आपकी बहुत सारी कंसेप्ट बहुत सारी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एनीवेज मतलब ये इससे आप इस पे आप जितना अच्छा एक एक्सप्लोर करोगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा।
आगे एक्सप्लोर करने में भी। ठीक है, मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि यार इसको वेटेज मत दो, इंपॉर्टेंस मत दो, ये कुछ काम का नहीं, या ऐसा अभी कोई यूज नहीं करता, ऐसा बोलूंगा तो मॉरल डाउन हो जाएगा। मे बी आप बोलोगे ठीक है यार इसको छोड़ देते हैं ज्यादा, लेकिन वो क्या है ना गाइस, प्रोसेस है, तो आपको इससे जानना है, एक्सप्लोर करना है। डोंट वरी, अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप 2 बार इसको रीड करके जितना हो सके उतना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, करो और छोड़ो, बट ऐसे ही स्किप मत करो इसको। ठीक है, स्किप मत करो। और गाइस देखो, मैंने जितना हो सके कि आपको यार ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग या अच्छे समझ में आए, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिंक्स भी दिए एडिशनल, आप जस्ट गो थ्रू कीजिए इन लिंक्स में। हो सके आपको और अच्छे से एक ग्राफिकली वीडियो देख के आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अपना अल्टीमेट इंटेंस क्या है कि आपको ये समझे, जो भी हमने अभी तक कवर किया है ये सब चीजें आपको समझे। ठीक है, मतलब ये इसमें पहले भी है अपना मीन मोड से लेके बहुत सारी चीजें, तो यू कैन गो एंड जस्ट इसको देखो, वॉच करो, वीडियो के थ्रू गो थ्रू करो, बट जस्ट टू मेक श्योर कि यू आर लर्निंग जर्नी इज स्मूथ। ओके, सो दिस वाज द लास्ट सेशन गाइस फॉर स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स का असाइनमेंट भी दिया है, हो सके तो टाइम टाइम निकाल के उसको देखो। ठीक है, हो सके तो ये वीडियोस देखो, हो सके तो ये पूरा नोटबुक एग्जीक्यूट करो, जाओ थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजीज जो भी है वो देखो, जितना हो सके उतनी अच्छी बात है। एनीवेज गाइस, तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा अपना थर्सडे को, वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द exploratory data analysis EDA, which is very interesting, very easy to understand। अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ से आगे का जो भी चीज है गाइस, ठीक है मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आगे का जो भी चीज है उसमें इंटरेस्ट अगर आपका है तो आप इजीली पूरा मशीन लर्निंग एआई तक आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा ऐसा मैथमेटिक्स के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और जहां पे भी आया है वहां पे मैंने अच्छे अच्छे एकदम रियल लाइफ के एग्जांपल्स देके ट्राई किया है, कोशिश किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, बट यहाँ से आगे जो भी रहेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। प्लीज बी कंसिस्टेंट इफ यू वांट टू बी लाइक एक्सपर्ट एंड मास्टर इन मशीन लर्निंग एंड एआई। ओके, एंड इवन इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ सिंप्लीफाइड, हाँ सिंप्लीफाइड, मतलब जो भी आप डेली रूटीन के जो काम करते हो अपने ऑफिस के काम, वो अगर आप ये आगे के जितने भी सेशन है वो अगर प्रॉपर कर लोगे ना, तो आपको बहुत सारे वेज एक्सप्लोर हो जाएंगे कि इजी, कितना इजी और कितना टाइम सेविंग आप कर सकते हो इन उन सारी चीजों में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, तो मेक श्योर यू विल बी अटेंडिंग लाइक ऑल द सेशंस विच आर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। जो ईडीए हम चालू करने वाले हैं, मशीन लर्निंग देखेंगे, एंसेंबल टेक्निक सीखेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, कंप्यूटर विजन वगैरह, एनएलपी जो भी सीखेंगे आगे जाएंगे एआई पे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एंड वही होने के बाद फिर रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, मतलब ऐसे समझो कि 3 महीने के बाद यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द रियल लाइफ एप्लीकेशंस। जो भी प्रॉब्लम, और मैंने देखा, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मेरे कंपनी में तो चल ही रहा है, लेकिन मैं साइड बाय साइड, मेरे को बहुत सारा टाइम है इसलिए मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मैं अलग अलग फ्रीलांसिंग इधर उधर जो एक्चुअल चल रहे हैं ना, जहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चल रहे हैं अभी, वो काम लगभग मतलब एवरीवन इज डूइंग, स्ट्रगलिंग, फाइंडिंग, डूइंग रिसर्च ऑन दिस सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स विच आई हैव सीन सो फार ना। तो वो सब हम देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, मतलब आपको मैं वहां तक लेके जाऊंगा, फिर आपको भी इन्वॉल्व करूंगा कि भाई आप भी सोचो, आप भी करो कुछ तो इम्प्लीमेंट इस पे, और देखो कुछ होता है क्या, और धीरे धीरे आपको यूज टू हो जाएगी और आप धीरे धीरे ऐसे एआई में मूव हो जाओगे। सो दैट इज आवर पर्पस, दैट इज आवर थॉट प्रोसेस, एंड ऑल्सो लाइक द वी आर गोइंग इन दैट डिरेक्शन गाइस, यही अपनी कोशिश है। सो ऑल राइट, वी हैव लाइक 9 बज गए हैं, सो आई होप यू विल बी कंसिस्टेंट। आपका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बना रहेगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, एंड आई होप कि ये 3-4 महीने में आप में बहुत सारा चेंज आ जाएगा, एंड दैट चेंज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, जस्ट you have to be consistent. All right, yeah, thank you guys, so we Thank will you. meet Thursday evening, so make sure you are following these things, Thank you. giving your 100%. Yeah, thank you guys. Thank you.